الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے کورس کا لیکچر نمبر 3 یعنی سبق نمبر 3 شروع کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم پچھلا لیکچر جس میں ہم نے مخارج الحروف کو شروع کیا تھا اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ مخارج مخرج کا جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں منہ کے اس حصے کو جہاں سے کوئی حرف ادا ہو، اور ہم نے جانا کہ ہمارے پاس جو حروف الہجا عربی میں جن کی تعداد 29 ہے، وہ حروف منہ سے لے کے یعنی ہمارے ہونٹوں سے لے کے ہمارے اندرون منہ اور ہمارا جو گلا ہے یہاں سے یہ سب حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ مخارج جن کو ہم انگلش میں آرٹیکولیشن پوائنٹس بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے منہ میں 5 قسم ہیں۔ جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے منہ میں ہونٹوں سے لے کے ہمارے گلے تک 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ الحلق، الحلق کہتے ہیں گلے کو، تھروٹ کو، یہاں سے ہمارے پاس 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور دوسرے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 2 میں ہم نے ان کو ایکسپلین کیا تھا، ان کی ہم نے مشق کی تھی۔ دوسرا جو مخرج ہے وہ ہے اللسان والاسنان، یعنی زبان اور دانتوں کے درمیان سے، زبان کے مختلف حصے مختلف جگہوں پہ لگانے سے، مختلف دانتوں کے ساتھ ملانے سے ہمارے اکثر حروف ادا ہوتے ہیں، تقریباً 18 حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان آج ہمارا یہی ٹاپک ہوگا۔ تیسرا حصہ ہمارا ہے الشفتان، یعنی ہمارے جو 2 ہونٹ ہے ان کے ملانے سے، مختلف حصہ آپس میں ملانے سے ہمارے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الجوف، منہ کا خالی حصہ، یعنی ہمارے منہ کو بند کرنے کے بعد جو بھی حصہ ہمارا خالی حصہ رہتا ہے اس سے بھی کچھ حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الجوف۔ اسی طرح ہے الخشیوم، الخشیوم جو ہے یہ ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، یعنی ناک کے اندر جو خالی سپیس ہے جس میں ہمارے پاس کارٹلیج ہے، اس میں سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں ایک خاص کنڈیشن میں، تو اس مخرج کو ہم کہتے ہیں الخشیوم۔ اس طرح ہمارے پاس بنیادی طور پر مخارج کے 5 اقسام ہیں۔ چونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے الحلق یعنی گلے سے جو 6 حروف ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ گلے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ حمزہ 2 حروف ایسے جو نیچے والے حصے، گلے کے نیچے والے حصے، جس کو ہم نے نام دیا تھا اقص اللسان، اقص اللسان، اقص الحلق، اقص اللسان کے بجائے اقص الحلق، یعنی حلق کا یا ہمارے گلے کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے جو ہمارے سینے کی جانب ہے، اس سے ہمارے پاس 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، گول ہا۔ اس کے بعد بیچ والا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں وسط الحلق، حلق کا درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ، جس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا، حا حکمت والا حا۔ اور اس کے بعد ہے ادنى الحلق، یعنی جو گلے کا پہلا حصہ ہے،
हमारे मुंह के बाद का जो गले से पहला हिस्सा अदा होता है, इसको हमने नाम दिया था अदनल हल्क। इससे हमारे पास दो हरूफ अदा होते हैं, गईन और खा। तो ये 6 हरूफ हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि वसतुल हरूफ, ऐसे हरूफ जो हमारे जुबान और हमारे दांतों के मिलाने से अदा होते हैं। तो इससे पहले कि हम हरूफ पे आए, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी जो जबान है अल लिसान, जिसको अरबी में अल लिसान कहते हैं, यानी अल लिसान या जो जबान हमारे पास है, इसमें हमारे पास 10 मखारिज है। यानी जबान के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पे अंदर मुंह के दांतों से मिलाने के बाद हमारे पास असल में 10 मखारिज बनते हैं, 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट बनाते हैं, जिसमें से 18 हरूफ अदा होते हैं। वो कौन से हरूफ हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जाने कि जुबान जो हमारे पास है इसके 4 हिस्से हैं अरबी के लिहाज से। एक तो है जुबान का आखिरी हिस्सा, यानी वो हिस्सा जहां से जुबान हमारी मुंह में जुड़ी हुई है। देखिए हमारे पास जुबान जो है, सामने से जुबान ओपन है, खाली है, मगर पीछे से ये जुड़ी हुई है, ये मिली हुई है। ये जो पिछला हिस्सा है जुबान का, जहां से जुबान जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं अक़सुल लिसान। अक़सुल लिसान यानी जुबान का पीछे वाला हिस्सा, जहां से ये बंद है। इंग्लिश में हम कहेंगे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। दूसरा हिस्सा जो जुबान का है वो है वसतुल लिसान। वसत कहते हैं अरबी में या उर्दू में भी दरमियानी हिस्से में। तो जबान का जो दरमियानी हिस्सा है, जबान खोलने के बाद जो बीच वाला हिस्सा आप देखेंगे जैसा ये, इसको हम कहेंगे वसतुल लिसान, मिडल ऑफ द टंग। इसके बाद है जबान की करवट, जिसको हम कहेंगे एज ऑफ द टंग। इसको अरबी में कहते हैं हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान, जैसे ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, इन्हें जुबान का जो बिल्कुल जो किनारे हैं दोनों साइड से, इसको हम कहते हैं एज ऑफ द टंग या हाफतुल लिसान, या जुबान की करवट भी इसको हम उर्दू में कहते हैं। और फिर चौथा हिस्सा जो है वो है नोक। नोक, जो जबान की नोक जो है ना, जिसको हम कहेंगे टिप ऑफ द टंग। तो ये हमारे पास जुबान के 4 हिस्से। तो सबसे पहले हमने जुबान जाना, हमें असल में पढ़ना है वो हरूफ जो जुबान और मुंह के मुख्तलिफ हिस्से जिसमें दांत भी आते हैं उनके मिलाने से जो हरूफ अदा होते हैं उनको हम हरूफुल वसती भी कहते हैं, इन्हें दरमियानी हरूफ, क्योंकि ये होंठों और गले के बीच वाले हरूफ है। और क्योंकि हमारे मुंह में जुबान है तो हमने जाना जुबान में 4 हिस्से हैं। एक आखिरी हिस्सा जहां जुबान जुड़ी हुई है, अक़सुल लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। वसतुल लिसान, दरमियानी लिसान, जहां आप देख रहे हैं, इसको मिडल ऑफ द टंग भी कहेंगे। फिर है हाफतुल लिसान, यानी जुबान का किनारा, एज ऑफ द टंग या साइड्स ऑफ द टंग। फिर है हमारे पास तरफुल लिसान, यानी जुबान की नोक, टिप ऑफ द टंग। अब आप तवज्जो रखिएगा, हम कुछ हरूफ पढ़ेंगे जो जबान के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पे मिलाने से अदा होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मखरज हमारे पास है, क्योंकि 3 मखारिज हमने पढ़े, 3 मखारिज हमारे गले के हैं, हमजा हा, आइन हा और गईन खा। अब चौथा मखरज जो हमारे पास है वो है कौफ का। कौफ, अरबी में भी इसको कौफ पढ़ते हैं, उर्दू में भी इसको कौफ पढ़ते हैं, बट अरबी में जब इसको पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसमें यह किया जाता है कि जो जबान का आखिरी हिस्सा है, जबान का आखिरी हिस्सा कौन है जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये वाला हिस्सा अक़सुल लिसान, जुबान का आखिरी हिस्सा। जुबान के आखिरी हिस्से को हम ऊपर के तालू के साथ जोड़ देंगे। जुबान का आखिरी हिस्सा जब ये ऊपर के तालू के साथ मिल जाता है तो हमारे पास कौफ अदा होता है। कौफ, कौफ। ये पढ़ते वक्त होंठों को हम गोल करते हैं और आवाज आप देखिएगा कैसे अदा होता है, कौफ, कौफ। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे कि ये जो कौफ हर्फ है ये तब अदा होता है व्हेन रूट ऑफ द टंग, व्हेन रूट ऑफ द टंग, यानी जिसको हमने नाम दिया था अक्सल लिसान, व्हेन रूट ऑफ द टंग टच द सॉफ्ट प्लेट, यानी रूफ ऑफ द टंग मीन्स जबान का आखिरी हिस्सा अक्सल लिसान। जब वो प्लेट, जो ऊपर वाला प्लेट यानी जिसको हम तालू कहेंगे, जब वो सॉफ्ट प्लेट के साथ ऊपर वाले हिस्से के साथ मिलेगा तो हमारे पास अदा होगा कौफ, कौफ,
ٹھیک ہے, کچھ مثالیں دیں گے. جیسے قاف پہ زبر ہے, پڑھیں گے قالا قالا. دیکھیں ہم اکثر غلطی پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں کالا, کالا غلط ہے, یہ ہے قالا. اب دیکھیں زبان کا آخری حصہ اوپر کے ساتھ ملائیے, ہونٹوں کو گول کیجئے, آواز موٹی نکلے گی. قالا, قاف کے نیچے زیر, قاف مکسور بنائیں گے. قیلا قیلا, قاف کے اوپر پیش مضموم قاف تو بنے گا قل. اکثر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اسی طرح زیادہ تر ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا قاف ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جب ہم قاف کو ساکن بنائیں گے. یہ دیکھیے قاف ساکن ہے, ماقبل مفتوح یعنی ماقبل زبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اقرب اق. اب آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے اقرب کیوں نہیں پڑھا, میں نے اس کی آواز کو باہر کیوں نکالا؟ اس میں ایک صفت ہوتی ہے جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں, وہ ہم الگ سے پڑھیں گے. ابھی آپ توجہ صرف اس بات پہ دیں گے کہ یہ کیسے ادا ہو رہا ہے. اقرب اقترب اقترب. اچھا, یقرض یقرض. تو قاف کا مخرج, زبان کا آخری حصہ, اقصی لسان, جبکہ اوپر کے تالو کے ساتھ مل جائے گا. قاف کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. تو یہ تھا ہمارے پاس قاف. قاف کے بعد ہمارا دوسرا مخرج جو ہے, جو اسی زبان کے ملانے سے ادا ہوتا ہے, وہ ہے کاف. اب دیکھیں قاف اور کاف, اردو میں ہم زیادہ فرق نہیں کرتے, مگر عربی میں کافی زیادہ فرق ہو جائے گا اگر ہم قاف کے بجائے کاف پڑھیں گے. یہ کاف ہے, سمپل. اس کو ہم کہیں گے کتاب والا کاف, اور وہ ہے قرآن والا قاف. قرآن, قاف کو موٹا پڑھتے ہیں, جبکہ جو ہمارے پاس کاف ہے یہ سمپل ہے, کاف KAAF, کاف کاف. یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ بھی برابر قاف کی طرح ادا ہوتا ہے, یعنی زبان کا آخری حصہ. مگر دیکھیں جو ہمارا جو اوپر والا تالو ہے نا, اس میں سب سے لاسٹ میں سافٹ پلیٹ ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ ہم زبان کا آخری حصہ ملائیں گے تو قاف ادا ہوگا. مگر اگر اس سے سامنے ہارڈ پلیٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا سخت پلیٹ ہوتا ہے تالو میں, اگر اس کے ساتھ ملائیں گے زبان کا آخری حصہ تو کاف ادا ہوتا ہے. کاف, یہ کاف ہے, کاف کاف. یہ قاف نہیں ہے, یہ ہے کاف. انگلش میں کہیں گے, کیسے ہم ادا کرتے ہیں؟ It is pronounced from the root of the tongue. جب ہم root of the tongue کو ملائیں گے کس کے ساتھ؟ the upper plate, the hard plate, جو اوپر ہمارے پاس hard plate ہے, اس کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو ہمارے پاس کاف ادا ہوتا ہے, کاف. اوکے, سو ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹچ کرتے ہیں زبان کے آخری حصے کو, اور جو ہمارے پاس ہارڈ پلیٹ اوپر کی طرف تالو کے ساتھ ہے, اس کے ادا کرنے سے ہمارے پاس کاف ادا ہوتا ہے. عام زبان میں ہم یہ جانیں گے کہ قاف جو ادا ہوتا ہے نا, اس سے تھوڑا آگے کاف ادا ہوتا ہے. یعنی عام زبان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کاف کا جو مخرج ہے وہ قاف سے تھوڑا ہٹ کر ہے, تھوڑا آگے ہے, اور قاف کو موٹا پڑھیں گے, جبکہ کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. باریک مطلب اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے, اس کو ہم گول کر کے نہیں پڑھیں گے, آواز موٹی کر کے نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں, کاف زبر کا, سمپلی کاتابا کاتابا. اسی طرح کتابن, نارمل, کوئی بھی موٹا آواز نہیں نکالنی ہے. کتیبا کتیبا تکتمونا. اب دیکھیں یاد ایک بات رکھیے گا, جب ہم نے قاف کو پڑھا آواز ہم واپس لے آئے, جیسے ہم نے پڑھا تھا یقرض اللہ, پڑھا تھا نا. مگر جب ہم کاف کو پڑھیں گے آواز کو روکیں گے, آواز کو واپس نہیں آئیں گے. دیکھیں کیسے, تکتمونا. اکثر غلطی ہم کیا کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں تکتمونا, یہ غلط ہے. آپ کو کیسے پڑھنا ہے, آواز کو روکیے, تکتمونا. اسی طرح اکرامن, ایک, آواز روکیے, ایک نہیں. بہت سارے غلطیاں کیا کرتے ہیں, اس میں پڑھتے ہیں ایک ایک ایک, ایک نہیں ہے, یہ ہے ایک. اکرامن, شکرن شکرن. تو یہ کاف کا مخرج ہے. قاف اور کاف کا مخرج تقریباً ساتھ ساتھ میں ہے. البتہ قاف کو پڑھتے وقت جو زبان کا آخری حصہ ہے اس کو ہم اوپر سافٹ پلیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں, آواز موٹی ہو جاتی ہے اور قاف ادا ہوتا ہے. جبکہ کاف زبان کا آخری حصہ اوپر ہارڈ پلیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں, زبان کی آواز جو ہے وہ موٹی نہیں رہتی, تو ہمارے پاس کاف ادا ہوتا ہے.
इसके बाद हमारे पास छठा मखरज जो है वो जबान से जो अता होता है वो है 3 हरूफ एक साथ। कौन कौन? जीम, शीन और या। जीम, शीन और या, इन तीनों का मखरज एक है। ठीक है, जीम, शीन, या, तीनों हरूफ। या जब आप याद रखेंगे तो ये गैर मद्दा होगा, अगर मद्दा के साथ या होगा तो उसका मखरज अलग है। तो कौन कौन 3 हरूफ है? एक है जीम, दूसरा है शीन, उसके बाद है या गैर मद्दा, यानी जो मद्दा वाला या नहीं है, नॉर्मल या। इनका मखरज क्या है? जब जबान का दरमियानी हिस्सा यानी मिडल ऑफ द टंग, जिसको हमने नाम दिया था वसतुल लिसान, जबान का दरमियानी हिस्सा ये है। जबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु के साथ मिल जाता है हमारे पास अदा होता है जीम। ये जीम नहीं है, ये है जीम। जीम, फिर है शीन, फिर है या। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन मिडल ऑफ द टंग इट टच विद द मिडल ऑफ द प्लेट, यानी मिडल ऑफ द टंग मीन जबान का दरमियानी हिस्सा, जब ये ऊपर उसके बराबर ऊपर के हिस्से के साथ, यानी उसके बराबर जो सिदान में ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ ये मिलेगा तो जीम, शीन, या अदा होता है। मिसालें देंगे कुछ जीम, शीन, या की, जैसे यहां पर है या, जी, जू, आज, इजी, उज। कैसे पढ़ेंगे? शा, शी, शु, आश, इश, उश। उसके बाद या, यी, यू, आई, ई। कोई हर्फ नहीं है कुरान में तो इसको हमने छोड़ दिया है। अब मुरक्कबात में मिसाल देंगे। जीम की मिसाल सबसे पहले जहादा, जहादा, जिहादुन, जिहादुन, वुजूहुन, जू, जू, जू नहीं, जू, वुजूहुन, तजअल, तजअलु, तजअलु आइन के साथ। उसके बाद रिजन, रिजन, तुजिजा, तुजिजा। शीन की मिसाल शाहिदा, शिकाकुन, कौफ के देखिएगा, कौफ हमने कैसे पढ़ा? शिका, शिका, शिकाकुन, शुहदाउ, शु शु शुहा, शुहदाउ, यशउरूना। आइन की मिसाल याद रखिएगा, वस्ते अलक वाला, यशउरूना, इशरूना, इश आइन से इशरूना यानी 20, इशरूना, मुशफिकूना। देखिए कॉफ भी याद रखिएगा, मुशफिकूना। या की मिसाल या गैर मद्दा, यफ़अलु, बैयिनातुन, बैयि, देखिए कैसे हमने अदा किया, बैयिनातुन, युखादिऊना, बैउन, बीउन। और उसके बाद ये वाली मिसाल हमारे पास या में कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जीम, शीन, या मखरज क्या हो गया? जबान का दरमियानी हिस्सा वसतुल लिसान, जबकि ऊपर के तालु के साथ मिल जाता है। अब इसके बाद जो जुबान है, अब वो मुख्तलिफ दांतों के साथ मिलके हमारे पास और कुछ हरूफ देंगे। अभी तक हमने 6 हरूफ पढ़े। ठीक है, 6 हरूफ में से कौन कौन हरफ हमने पढ़ा जो बीच में अदा होता है? एक तो पढ़ा कौफ, एक पढ़ा काफ, एक पढ़ा जीम, शीन, या। 6 के बल्कि हमने 5 ही हरूफ पढ़े। अब जो बाकी हरूफ बीच में अदा होते हैं, इन्हें दांतों के साथ और जुबान के साथ अदा होते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे हमारे पास दांतों के अरबी में नाम है। उससे आपको याद रहेगा कौन सा हिस्सा जुबान का किस वाले दांत के साथ हम मिलाएंगे। देखिए हमारे पास अमूमन जो हमारे दांत है उसमें से 32 दांतों में से जो हमारे पास 28 दांत है, ये 28 दांत हमारे इस्तेमाल में आते हैं जब हम बहुत सारे हरूफ अदा करते हैं। जैसे हमारे पास जो दांतों की तादाद है ऊपर और नीचे तकरीबन सेम होती है, और इसमें जो आगे वाले 2 दांत है और नीचे वाले जो बड़े 2 दांत हैं, इन्हें कुल मिला के जो 4 दांत ऊपर और नीचे हैं, इन 4 दांत को हम कहते हैं सनाया। असनाया, अस देखिए सा को नरम पड़िएगा, असनाया। सनाया
इन्हें आगे वाले 4 दांत, ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत, इनको हम कहते हैं अस्सनाया। अस्सनाया में जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनको कहते हैं अस्सनाया अल उलिया, उलिया, इन्हें सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दांत। और जो सनाया के जो नीचे वाले 2 दांत है नीचे जबड़े में, उनको कहते हैं सनाया सुफला। सनाया ऊपर वाले 2 दांत सनाया उलिया, नीचे वाले 2 दांत सनाया सुफला, चारों को हम कहते हैं सनाया। ठीक है, सनाया उलिया ऊपर वाले 2 दांत, सनाया सुफला नीचे वाले 2 दांत, चारों को मिला के सनाया कहते हैं। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर, जिनको हम इंग्लिश में फ्रंट इंसाइजर्स कहेंगे, ये 4 है, ऊपर 2 दांत नीचे 2 दांत, इनको सनाया कहेंगे। इसके बाद आप सनाया के साथ में आप देखिए जो ये रेड कलर में जो यहाँ 1 दांत, यहाँ 1 दांत, ऊपर की तरफ नीचे भी यहाँ 1 दांत, यहाँ 1 दांत, ये 4 दांत जो है ना, इनको कहते हैं अर्रुबाइयात। अर्रुबाइयात, रुबाइयात यानी 4 दांत, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इंसाइजर्स। ये 4 दांत है। तो सनाया के बाद अर्रुबाइयात, 4 दांत जो इसके साथ साथ में दोनों तरफ ऊपर नीचे है, इनको हम कहते हैं अर्रुबाइयात। अर्रुबाइयात के बीच में उसके बाद चारों तरफ से, इस साइड में भी, इस साइड में भी, ऊपर नीचे और 4 दांत जो है, जो यहाँ पर ब्लू कलर से हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इनको हम कहते हैं अल अनियाब। अल अनियाब बहुत आसान याद रखना है। सनाया, उसके बाद जो 4 दांत, ऊपर 2 दांत नीचे 2 दांत, सनाये के साथ साथ में अर्रुबाइयात, उसके बाद ऊपर 2 दांत उनके बगल में, नीचे 2 दांत उनके बगल में अल अनियाब, वो भी 4 दांत है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है अनियाब के बाद जो इस कलर में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये कलर फिरोजी कलर, ये 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे अनियाब के बाद, इनको हम 4 दांतों को कहते हैं अज़्ज़वाहिक। अज़्ज़वाहिक, ठीक है, ये भी 4 दांत है। उसके बाद आप देखिएगा ये जो येलो कलर में ऊपर 3 दांत एक साइड में, फिर ऊपर 3 दांत दूसरे साइड में, टोटल मिला के 6, और नीचे भी 3 3 6, इन 12 दांतों को टोटल हम कहते हैं अत-तवाहिन। यानी इनको उर्दू में हम अदराज भी कहते हैं, दाढ़ियां, उर्दू में दाढ़ियां कहते हैं, अत-तवाहिन है। अपनी जबान में कश्मीरी में हम उनको अदराज अड़ब कहते हैं, अड़ब। ठीक है, यानी जो हमारे पास ऐसे दांत हैं जिनसे हम काटते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे इनको प्रीमोलर्स, जो अक्सर ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये वाले दांत अंदर वाले 4 4 ऊपर नीचे जो मेन दांत है, जो पीसने ग्राइंडिंग करने में हमारी मदद में आते हैं, इनको हम अत-तवाहिन कहते हैं। और लास्ट के जो दांत है अन-नवाजिज़, याद रखिएगा, जिनको हम इंग्लिश में विजडम टीथ कहते हैं, वो 4 है। और याद रखना चाहिए इन 4 टीथ से, विजडम टीथ से कोई भी हर्फ अदा नहीं होता, क्योंकि हम नाम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमने इनका भी नाम जाना। तो ये एक तरह से आपके सामने आज एक प्रैक्टिस हो गई, अरबी में दांतों के क्या नाम है। हम ये दांतों के नाम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपका कोई BDS का कोर्स चल रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये जानना है कि कौन सा जुबान का हिस्सा किस दांत के साथ मिलेगा और कौन सा हर्फ हमारे पास अदा होगा। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह प्रैक्टिस से अदा होंगी, आपको क्लियर हो जाएगा ये इंशाल्लाह तमाम चीजें, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह जब आप 2-3 बार इसको देखेंगे। अब देखिए, इन दांतों के नाम याद करने के बाद मैं उनको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, और जबान के 4 हिस्से आपको पता हो गए। अब हम इंशाअल्लाहुल मुस्तान आगे मखारिज पढ़ेंगे। अब इसके बाद है दाद। देखिए याद रखिएगा, ये सबसे मुश्किल हर्फ है अदा करना, न सिर्फ हमारे लिए जो गैर अरब है, बल्कि उन लोगों के लिए जो अरब है। अरब और नॉन अरब बोथ लोगों के लिए ये जो हर्फ दाद है ना, ये पढ़ना टफ है। क्यों टफ है? देखिए कैसे टफ है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जो जबान की करवट है ना, हाफतुल लिसान, अब देखिए इसमें मैंने बना रखा है, जबान इस साइड में है, जबान की पूरी करवट, चाहे राइट साइड में ले चाहे लेफ्ट साइड में ले, लेना आपको एक ही साइड है, जबान की पूरी करवट, ठीक है, इनको आपको मिलाना है अदरास के साथ, यानी तवाहिन के साथ। यहां पर तवाहिन के साथ जबान की एक करवट पूरी, चाहे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते, या तो आपको राइट में लेना है, आपकी चॉइस है, या आपको लेफ्ट में लेना है, और उनको मिलाना है अदरास, दाढ़ियों के साथ। ये देखिए ये है दाढ़ियां,
अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है दाढ़ियां, आखिरी दांत। कैसे पढ़ा जाएगा? रॉद। देखिए रॉद, जब थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों साइड से नहीं पढ़ा जाता, या तो आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए अपने पूरे जुबान को, या राइट साइड में। कैसे पढ़ा जाता है? रॉद रॉद। अब देखिए ना, मेरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि इसका जो मखरज है, ये जबान की करवट हाफतुल लिसान को हमें बिल्कुल ऊपर दाढ़ियों के साथ, जैसे मैंने आपको दिखाया, तवाहिन के साथ मिलाना है। ठीक है, इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, और दूसरा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आएगा। अब कोई कहेगा इसको वाद यानी जा के शक्ल में पढ़ेंगे, या वाद यानी दाल की शक्ल में पढ़ेंगे, वो आपकी चॉइस है। वैसे चूंकि हम अरब में हैं, तो यहाँ पर ये दाल की शक्ल में पढ़ा जाता है। दाद गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। दाल बिल्कुल टेढ़ा करना है, एक साइड जो आपका जुबान का है वो बिल्कुल आपके दाढ़ियों के साथ मिल जाएगा। प्रैक्टिस के साथ ये हो जाएगा। मिसालें कुछ देंगे। राराबा, ये दराबा नहीं है, याद रखिएगा, दराबा नहीं। राराबा एक साइड में ले लीजिए, अपनी जो आपकी जो जुबान है उसको एक साइड में ले लीजिए। राराबा, टंग को बिल्कुल, इंग्लिश में हम कहेंगे ये प्रोनाउंस होता है व्हेन साइड्स ऑफ द टंग, जिसको हाफतुल लिसान कहते हैं, एंड द रूट्स ऑफ द अपर मोलर्स, यानी ये जो मैंने आपको बताया था तवाहिन, उनके रूट्स तक। रूट्स मीन्स जहां से तवाहिन जुड़े हुए हैं, ठीक है, गम्स तक, जो तवाहिन के गम्स तक आपको अपने एक साइड में अपने यानी टंग को या अपने जुबान को ले जाना है। दौराबा अर्दी, अर्दी, दी, याद रखिएगा, दी ये दी नहीं है, अर्दी नहीं, ये अर्दी। इसी तरह दुरीबत या रिबू, देखिए दाद को भी कलकला नहीं होता, दाद की आवाज को भी रोकना है। या रिबू, इब रिब, इब रिब। मुज़इफूना, मुज़इफूना, तो यहां पर ये दाद की हमने मिसाल ले ली। दाद के बाद जो दूसरा हर्फ अदा होता है वो है लाम। लाम पढ़ना बिल्कुल आसान है, लाम बिल्कुल आराम से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है याद रखना चाहिए। जब हम ये जो जबान की जो करवट है, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, एज ऑफ द टंग, इसको हम मिलाएंगे जवाहिक, जवाहिक के जड़ तक। जवाहिक ये वाले दांत, यानी तवाहिन से जो आगे वाले 4 दांत है ना, उनको हम कहते हैं जवाहिक। तो जवाहिक तक जब आप अपनी जबान की करवट को ले जाएंगे तो ये खुद ब खुद अदा होगा। लाम, इसमें कोई मेहनत नहीं है। और लाम पढ़ते वक्त दोनों साइड से जो हमारी जो जबान की करवट है ना, वो ऊपर की तरफ मिल जाती है दांतों के साथ, जवाहिक तक। कैसे पढ़ेंगे? ला, ली, लु, अल, इल, उल, ऐसे पढ़ेंगे। फ़अला, ज़ालिका, ली, यफ़अलु, यफ़अलु, आइन को भी याद रखिएगा, लु, जअलना, जअल, अल पढ़ने के बाद आप देखिएगा आपका जो ज़बान है वो दोनों तरफ ऊपर मिलना चाहिए, ज़वाहिक तक के दांतों के जड़ तक। इल्मुन, कुलना, कुल, कुल, जब आप कुल पढ़ेंगे तो आपको याद रखिएगा लाम को ऊपर की तरफ मिलाना है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे it is pronounced when the edge of the tongue and the part of the roots of the teeth towards the palate, जिनको हमने नाम दिया अज़वाहिक। इससे लाम अदा होता है। इसके बाद है नून। अब नून इससे भी आसान अदा करना है। याद रखिएगा आप, इसी तरह जो जबान की जो करवट है जिसको हमने नाम दिया एज ऑफ द टंग, इसको हमें जो ज़वाहिक है ना उससे आगे वाले जो 2 दांत है ऊपर की तरफ, जिनको हमने नाम दिया अनियाब, उनके साथ मिलाना है। अन बिल्कुल आसान। नून, ना, नी, नू। लाम थोड़ा सा और जबान फैल के ऊपर जाएगी। नून थोड़ा सा सुकड़ के, जो उससे पहले 2 दांत है जिनको हमने नाम दिया अनियाब, ऊपर वाले 2 दांत उनके साथ मिलेगी जबान। ना, नी, नू, अन, इन, उन। कैसे पढ़ेंगे? मना, हनीफुन, नु, मीनू, अंतुम। ये जो मैंने यहाँ एक सिफत अदा की, इसको भी बताऊंगा ये क्या होता है।
मिनकुम कुंतुम। तो नून और लाम इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, आसानी से अदा होता है। बस आपको याद रखना है कि अगर आपको मखरज भी पूरा याद ना रहे, आप ये याद रख सकते हैं कि जबान की जो जो इसकी जो करवट है ना, जो साइड्स ऑफ द टंग है, उनको ऊपर के दांतों के साथ मिलाना है। बस इतना आप याद रखिएगा, ये भी काफी। उसके बाद है रॉ। देखिए रॉ जो है, इसमें क्या होता है कि जो जबान की जो हमारे पास एज ऑफ द टंग है, जिसको हमने नोक बताया था, जबान की जो नोक है, ठीक है, जबान की जो नोक है, इन्हें ये भी एक मान लीजिए नोक और जो हमारे पास करवट है उसके बीच वाला, यानी बिल्कुल करीब वाला, इनको हमें ऊपर वाले दांतों के साथ मिलाना है, रुबाइयात। आप याद रखिएगा ये वाले, यानी धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं। आपने देखा जब दाद पड़ा, तवाहिन तक हमने अपने जबान की करवट को मिलाया, उसके बाद जब लाम पड़ा अज़वाहिद तक हमारे दांतों को मिलाया, जब नून पड़ा अनियाब तक मिलाया, जब हम रा पढ़ रहे हैं तो रुबाइयात तक हम मिलाएंगे। रा पढ़ते वक्त याद रखना चाहिए थोड़ी सी जबान में लकनाहट, या जिसको हम कहते हैं ना, वो एक तरह से ट्रैक्टर की तरह। अब देखिए ट्रैक्टर जब हम पढ़ रहे हैं ना तो ऐसे लर्जराहट जबान में आ जाती, इसी तरह रा पढ़ते वक्त रा रा रा, याद रखिएगा जबान में थोड़ी सा लर्जराहट पैदा होती है, जिसे सिज्मिक जबान हो जाती है रा पढ़ते वक्त। रा, री, रू, अर, इर, उर। कैसे पढ़ेंगे? अमारा, फरिहा, करुमा, यार, यारजुकु, यारजुकु, उमिरतु, उमिर। अब देखिएगा नुरसिला, नुरसिला। रा पढ़ना भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद तीन और हरूफ है, एक है ता, दूसरा है दाल, तीसरा है तौ। इन तीनों का मखरज एक है। मखरज क्या है? जबान की जो नोक है, जिसको हमने कहा टिप ऑफ द टंग, नोक की लिसान, ये जबान की जो नोक है, इनको हम ऊपर वाले जो दांत है ना उनके जड़ के साथ मिलाएंगे। ता ऊपर वाले सनाए उलिया जो है, ऊपर वाले जो दांत, बड़े दो दांत, उनके जड़ के पास जो उनका गम है ना, गम के साथ उनके साथ मिलाएंगे। ता, दाल, तौ, बिल्कुल आसान। फर्क ये करना है कि ता पढ़ते वक्त नॉर्मल पढ़ेंगे, जबकि तौ पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे, क्योंकि ता और तौ की आवाज तकरीबन एक जैसी है उर्दू में। अरबी में उनको कैसे हम अलग करेंगे? ता पढ़ते वक्त नॉर्मल पढ़ेंगे, तौ पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। ता, दाल, तौ जबान की नोक, जबकि हम ऊपर जो सनाए उलिया है उनके जड़ के साथ उसको मिलाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। इसके साथ हमारे पास ता, दाल, तौ अदा हो रहे। ता, ती, तू, अत, इत, उत, दा, दी, दू, आद, ईद, उद। देखिए तौ, फर्क कीजिएगा, ये ता है, ये तौ है। तौ, तुई, तू, होंठों को गोल कीजिएगा। आ तो, ए तो, ओ तो। अब पढ़ेंगे इसके मुरक्कब। काताबा, कुतीबा, यक्तुबु, यक आवाज को खोलना नहीं है। तत, यतलू, फितनतुन, उतलू, आदमु, दाल की मिसाल, दिमाउन, अलहम्दु, क़ादिर, इदफा, युदरिकु। तो की मिसाल, बसतो, बातिलुन, तुई, याद रखिएगा तिलुन नहीं है, बातिलुन, तुई, यतूफु, मतलूबुन। तो आपको याद रखिएगा कैसे मैं अदा कर रहा हूं। इत्आमुन, मुतमइन्ना, मुत। तो आपको देखिएगा हमने अदा कैसे किया। इसके बाद हमारे पास कुछ और हरूफ है जिनको हम अगली बार पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम दर्स को ख़त्म करें, आपके सामने सूरतुल नास पढ़ेंगे और उसमें जितने भी मखारिज है उनको हम एक तरह से आदा करेंगे। आप अपने साथ पढ़िएगा, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, कुल, कॉफ का मखरज क्या है? जबान की जड़ को ऊपर के साथ मिलाएंगे। कुल, मोटा कीजिएगा कॉफ को। कुल। देखिए लाम को कैसे पढ़ेंगे? जबान की जो करवट है उसको हम ऊपर वाले दांतों के साथ मिलाएंगे। कुल अऊज़ु, हमजा का मखरज ये हलकी हरफ है, अक्सा हलक यानी आखिर वाले हिस्से हलक से अदा होता है। अऊज़ु
आइन का मखरज वस्ते हलक है, बिरब्बिन्नास। रा का मखरज आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा तकरीर करेंगे, तकरीर मतलब थोड़ा सा इसको लर्जराहट देंगे। बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। खा का मखरज ये अदना हलक है, थोड़ी सी खराश होगी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। याद रखिएगा रा है, इसको कैसे अदा करना है, मिनल जिन्नति वन्नास। जितने भी हुरूफ हमने अभी तक पढ़े, कोशिश कीजिएगा उनको मखरज के साथ अदा करें। इस तरह हमारा आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारा ये सफ़र सहल और आसान बनाए और हमारे इस कोशिश को कबूल फरमाए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अगले मखारिज के साथ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।